আচ্ছা, তাহলে যেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটায় আমরা যেটা নিয়ে ডিল করব, যে স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম, যে জিনিসটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি সেটাকে এবার অ্যাপ্লাই করব। যে খালি তো অ্যাটম একা থাকে না, সি ইন নেচার যদি আমরা এলিমেন্টস নিয়ে স্টাডি করি দেখা যাবে দেয়ার আর সার্টেন এলিমেন্টস উইচ স্টে অ্যালোন। কোনো পেজ থেকে বলছি না, পরে বলবো যখন তখন বাইর করবি। তো দেয়ার আর সার্টেন এলিমেন্টস উইচ এক্সিস্ট অ্যালোন, দ্যাট মিনস ইন অ্যাটমিক ফর্ম, মানে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটমস আলাদা আলাদা থাকে। বাট দেয়ার আর আ লট অফ আদার এলিমেন্টস যারা দেখা যাবে একা একটা অ্যাটম থাকে না, दे अंडरगो कम्बिनेशन, माने একটা एटम आरेकटा एटम के साथ कंबाइन करेगा। एंड ये जो कम्बिनेशन के बाद जो ये सिस्टम बन रहा है जिसमें क्या है दो एटम, या किसी केस में हम लोग देंगे तीन एटम भी एक साथ रहेगा। तो এই কম্বিনেশন হওয়ার পরে যে সিস্টেমটা তৈরি হলো, দ্য কম্বিনেশন অফ অ্যাটমস অর দ্য গ্রুপ অফ অ্যাটমস together, they are called molecules. So what are molecules? Molecules are nothing but combination of atoms. Now how do these molecules form? This is for the first question. And the second question is, why do they form? जरूरत क्या था? Why the atoms alone were not say happy? Why were they combining with each other? This is another very important question. So we'll start with that, and also we'll again get back to that same formula of valency. तो valency का formula हमने सीखा था, तो কি ছিল ফর্মুলাটা? How to find out valency of an element? First we have to write down the electronic configuration, then we have to look at the valence shell or the outermost shell and the number of electrons that is present in that particular shell, that is called the number of valence electron. Next, valence electrons का number अगर 4 से कम या 4 का equal है, then we'll say its valency is equal to that number. But if the number of valence electrons is more than 4, 4 से ज्यादा आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन का कितना आएगा 2,6 आएगा कन्फिगरेशन, तो outermost shell में 6 electrons, that means it is greater than 4. So how to find out the valency in such cases? We have to subtract 6 from 8. तो 8 minus number of valence electrons, है ना? तो इससे हम क्या है डायरेक्टली निकाल सकते हैं. Now the question which still remains is, what does this term valency mean? वो तो नंबर हमने एक निकाल लिया, बट उसका मतलब क्या है कि उससे हम लोग क्या जान पा रहे हैं. तो वही चीज़ इस चैप्टर में जाके देखेंगे जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वगैरह सीखेंगे. तो इन द फर्स्ट फ्यू पेजेस यू विल फाइंड सम एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो अभी सिंस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस. আমি মেইন টপিকে প্রথমে ঢুকে যাচ্ছি, তারপরে এগুলো আমরা লাস্টে টাইম যদি বাঁচে অবশ্যই এগুলো করা যাবে, অথবা পরীক্ষাটা আপাতত শেষ হোক তারপরে. So before getting into combination and everything, the first thing that we have to learn is law of conservation of mass. पेज नंबर 165 का बार करो भाई. तो पेज नंबर 165 में तुमको दिखेगा कि एक हेडिंग भी दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये लोग? So they said that, say we have two substances and we are mixing them together and they are participating in a reaction. দুটোর মধ্যে reaction হবে, and after the reaction new products will be formed, right? तो ये लॉ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बिफोर द रिएक्शन जो हमने दो कंपोनेंट्स लिया था, से 10 ग्राम्स फर्स्ट कंपोनेंट लिया था, 20 ग्राम्स सेकंड कंपोनेंट लिया था, तो टोटल मास ऑफ द टू सब्सटेंसेस कितना हुआ? 10 + 20, दैट इज 30 ग्राम. So according to this law, after the reaction has completed and the products have been obtained, if we measure the weight of the mass of the two or more जितना भी product बनेगा उसका mass अगर measure किया जाए, we'll see that it will still remain the same. That is, पहले क्या था 30 था, after the reaction नया compound बन गया है, उनका भी अगर total weight निकाले वो 30 ही आएगा. तो this is called conservation of mass, मतलब mass remains the same or mass remains constant. तो लिखो हेडिंग दो कॉपी में फटाफट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आज थोड़ा फटाफट लिखना है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम है बहुत ज़्यादा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हेडिंग दिए तार नीचे लिखबी. इट स्टेट्स दैट it states that matter can neither neither be created nor destroyed in a chemical reaction
not destroyed in a chemical reaction, and the total mass of reactants and the total mass of reactants and the total mass of reactants and products remain the same. And products remain the same. हो गया? Stop. This is the law. Now let us understand by taking an example, एक numerical simple सा, उससे हम लोग समझेंगे ये law क्या बोलना चाह रहा है. मतलब actually we are trying to check whether this law will be obeyed or not in this particular case. तो पेज नंबर 166 आ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 9.1. एग्जाम्पल नंबर 9.1 अगर देखें तो बोला गया है इन अ ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्लेस 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ 2.92 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. तो रिएक्शन में लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं रिएक्शन तुमको याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो. अभी ये सब 10 में हम लोग रिएक्शंस डिटेल में सीखेंगे. जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या किया. कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया एंड हाउ मच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज टेकन 4 grams and it was added or mixed with 2.92 grams of hydrochloric acid, and after they were placed together or mixed, there was a chemical reaction and three new substances were formed. One is carbon dioxide, second one is water, and the third one is calcium chloride. So this is basically the entire reaction, and they have also told us in the question that after the reaction 1.76 gram of carbon dioxide was produced and 0.72 gram of water and calcium chloride को बोल रहे 4.44 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. देखो क्वेश्चन पढ़ के एक बार फिर से ये चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं ना. These are the two substances that were mixed, and after they were mixed these new substances were formed, so therefore a chemical reaction has happened. Now we have to check. देखो आगे क्या लिखा है, verify whether the law of conservation of mass is obeyed or not. तो law of conservation of mass क्या बोल रहा था, mass can neither be created nor destroyed, and finally एक चीज हमने ऐड किया एक्स्ट्रा कि total mass of reactants and products remain the same. That means total mass of reactants will be equal to total mass of the products. So we have to first find out the total mass of reactants. In a chemical reaction, reactants काके बोले, लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग हैं इनको reactants बोलेंगे, जिनको मिला रहे थे शुरू में, एंड जो सब अब चीजें हमको मिला आफ्टर द रिएक्शन नया जो बन रहा है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का मास ऐड कर देंगे. तो ऐड कर लेगा तो এখানে 4 + 2.92 इनको ऐड करने के लिए क्या है, ऐसा 0 लिया जाता है. तो 2 + 0 2, 9 + 0 9, 4 + 2 6. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज दिस. नेक्स्ट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स में किसको किसको ऐड करेंगे, 1.76 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का मास, देन 0.72, देन 4.44. इन तीनों का मास हम लोग ऐड करेंगे एंड ऐड करके देंगे कितना आ रहा है. चलो देखते हैं. 1.76, 0.72 एंड 4.44. चलो पहले इसको ऐड करने से कितना आएगा, 6 + 2 8 एंड 8 + 4 12. तो हाथ में बचेगा कितना, 1, देन 7 7 14, 14 and 4 18 and 1 19, अनदर 1, तो 4 5 6 एंड डेसिमल कहाँ पे था, हर एक में 2 डिजिट से पहले था, तो यहाँ पे भी रहेगा. तो देखो क्या आ रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जितना आया था टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स वही आ चुका है. तो कैन वी से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज मेंटेन्ड ना, এটাই তো বলেছিল সেম হবে. सो फाइनली विल कंक्लूड कि हाँ ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड इन दिस केस. तो देखो एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है उन लोगों ने, तो जिस तरह से उन्होंने लिखा है समझना एक चीज़ है, कॉपी में एक्सप्रेस करना अलग है.
तो जैसे उन्होंने लिखा है इसी तरह से लिखना है, घर पे बैठ के इसको हूबहू ये लैंग्वेज जो है हाथ पे उठा लेना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि वेरीफाई करने दे दिया, अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल 9.2। तो फ्रॉम दिस কোয়েশ্চেন, আচ্ছা নাইলে এক্সাম্পল 9.2টা আমি বাদ দিচ্ছি, এটা এখন থাক, প্রথমে এটা জানা উচিত না। একটাই কর আপাতত, এক্সামটা দিয়ায় আমি আশা করি এক্সামে সেকেন্ড টাইপেরটা দেবে না, এটাকে আমরা এক্সামের পরে আরামসে করব। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ল related to chemical combination, chemical reaction. Second law that we have to learn is called law of constant proportions. Now here comes the tricky part, because न्यूमेरिकल যেটা হয় এর উপর থেকে वो सब थोड़ा क्या ट्रिकी आता है। ट्रिकी इन द सेंस वी हैव टू डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। तो व्हाट डज दिस लॉ से? एग्जाम्पल के तौर पे मैं पानी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे वाटर, वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर अराउंड अस, जैसे नदी में है, पॉन्ड्स वगैरह, स्विमिंग पूल्स वगैरह, नाले से बह रहा है पानी, अगर ज़मीन के नीचे से भी पंप डाल के उठाएं तो वो भी पानी मिलेगा। तो हर एक जगह से सपोज वी आर कलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो सपोज कोई अंटार्कटिका घूमने गया है तो उसको भी बोल दिया कि चलो तुम मेरे लिए पानी तो मतलब बर्फ लेके आना, वो आते आते पानी बन जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो वाटर। एंड सपोज कोई एक एस्ट्रोनॉट मून पे चला गया, एंड सपोज किसी दिन मून पे भी पानी मिल गया, तो उसको भी हमने बोल दिया कि आप भी पानी लेके आइए मेरे लिए थोड़ा सा। ये हर अलग अलग जगह से हमने पानी को कलेक्ट किया। तो पानी को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम होगा हम लोग का, उसको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? जो उसका कंपोनेंट्स है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, ये दोनों से मिलके वो पानी बन रहा है। तो इसमें सपोज वी हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें से हमको निकालना है हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। सपोज हर एक पर्सन को जो जो अलग जगह से मेरे लिए पानी ला रहा है, सबको मैंने बोल दिया 10 ग्राम करके पानी लाना है। मैंने पहला वाला सैंपल लिया 10 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें से स्टडी करके मुझे कितना मिलेगा? 3% मुझे 30% मुझे 30% रेशियो अगर निकाले अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो रेशियो निकलेगा वो आएगा 1:8 रेशियो में मुझे मिलेगा पहला में। ठीक है, मिला। सेकंड सैंपल उठा लिया हम लोगों ने, वहाँ पे भी स्टडी करेंगे। अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर प्रोपोर्शन निकाला जाए, मतलब रेशियो निकाला जाए इन मास, तो वो रिजल्ट फिर से हमको क्या मिलेगा? 1:8। थर्ड सैंपल से भी 1:8। तो ऐसा दिखेगा कि इफ़ वी हैव कलेक्टेड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एंड ऑल्सो सपोज ये रिएक्शन में भी वाटर बन रहा है, इस रिएक्शन को करके भी हमने वाटर बनाया, तो ये तो कहीं से सोर्स हमने नहीं किया, ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। इस वाटर को भी लेके अगर स्टडी किया जाए, इसमें भी क्या दिखेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब कॉम्पोनेंट्स जो है इस कंपाउंड का, उसका अगर एक रेशियो निकाला जाए, इट विल रिमेन द सेम। तो दिस इज actually law of constant proportions. According to this law, for a particular compound, the ratio or the proportion in which the several components have combined to form that compound, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है, जिस रेशियो में कंबाइन करेगा, it will remain the same. Does not matter from where we have collected the sample of water or how we have prepared it. कोई अलग अलग रिएक्शन से बना रहे, जब तक हम लोग हर बार वाटर ले रहे हैं तो प्रोपोर्शन क्या है? हमको सेम मिलेगा। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। बुझा गया कथाटा? तो लेट्स अगेन देन राइट डाउन द स्टेटमेंट। तो पहले लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, हेडिंग दो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ब्रैकेट में दूसरा एक नाम से भी इसको बोला जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो ब्रैकेट में डेफिनिट प्रोपोर्शंस लिख के रखो। हम लोग पढ़ के जा रहे हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एग्जाम में आ गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिखना है, तो सेम चीज है, ये याद रखना है। नीचे लिख, इट स्टेट्स दैट when two or more elements combine to form a compound, they do so
in a fixed ratio by mass. तो अभी मैंने एग्जांपल दिया वाटर का। वाटर में क्या है, दो एलिमेंट से बन रहा है। नाउ देयर आर अदर कंपाउंड्स आल्सो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये दूसरा एक और एलिमेंट जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फॉर्मूला होगा उसका। तो उसमें क्या है, Na है, C कार्बन है एंड O ऑक्सीजन है। तो तीन एलिमेंट से भी बन सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ केसेस पे। तो इसीलिए स्टार्ट करें व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू सो मतलब दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो एक फिक्स्ड रेशियो से ही हर वक्त कंबाइन करेगा। ऑलवेज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 1:8। ये याद रखना, ये वाला एग्जांपल वाटर का। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। तब लिखो, अ कंपाउंड XY a compound XY is formed by the combination combination of two elements X and Y, two elements X and Y in the ratio of 2:3, in the ratio of 2:3 by mass। स्टॉप देके लिखो, if 50 grams of X reacts completely comma, how much Y is needed to form XY। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। जहां पे ऐसा रेशियो वगैरह दिखेगा तो कंसीडर कर लेना कि हो सकता है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो अभी जैसे करेंगे उसी तरह करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है कि XY इज अ कंपाउंड एंड दो चीज से बन रहा है, X एंड Y आर टू एलिमेंट्स, एंड जिस रेशियो में ये लोग कंबाइन कर रहा है दैट इज 2:3। तो स्टार्ट करेंगे, रेशियो ऑफ X एंड Y बाय मास इज इक्वल टू 2:3। अभी हमको बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कितना 50 ग्राम्स ऑफ X ले रहे हैं तो उसके साथ कितना Y कंबाइन करेगा ताकि वो कंपाउंड बन पाए। तो वो निकालने के लिए विल फर्स्ट कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 grams of X combines with how many grams of Y? X एंड Y का अगर रेशियो देखा जाए तो 2:3, मतलब 2 ग्राम X के साथ कितना Y कंबाइन करेगा, 3 ग्राम्स। ना अभी हमने मैथ्स में यूनिटरी मेथड सीखा है ना, तो 1 ग्राम ऑफ X विल कंबाइन विथ हाउ मच ऑफ Y। क्या करेंगे, इसको नीचे लेके चले जाएंगे ना, डिवाइड कर देंगे। आता है ये वाला প্রসেস ইউনিটারি মেথডটা শিখিস নি ম্যাথসে, এখনো করিস নি? হ্যাঁ করিস তো, থাকবে তো, এটা তো ছোট ক্লাস থেকে। আচ্ছা এখানেই দেখে নে, ট্রিকটা বুঝে নে। এই স্টেটমেন্টটা বানানো বুঝলি সবাই? ওই রেশিওটা দেখবি, রেশিওতে প্রথমে কার কথা বলছি,
পরে কার কথা বলছি y, তাহলে ওই রেশিওতে যে নাম্বারটা আছে 2 ওটা কার জন্য, x এর জন্য, পরেরটা y এর জন্য। ওটাকে আমি গ্রামে এক্সপ্রেস করছি, তাহলে বলতে পারি যে এখানে যত নাম্বার দিচ্ছি এত গ্রাম x এর সাথে কতটা y কম্বাইন করবে এই নাম্বারটা 3 গ্রাম, তাই লিখলাম 2 গ্রাম অফ x কম্বাইন্স উইথ 3 গ্রাম অফ y। এটা যাই রেশিও দেওয়া থাকে, তোকে 5:9 দেওয়া থাকে, কি লিখবি 5 গ্রাম অফ x কম্বাইন্স উইথ 9 গ্রাম অফ y। বুঝে গেল? এই স্টেটমেন্টটা বানানোটা ফার্স্ট স্টেপ, এটা তোকে করতেই হবে। নেক্সট আমরা কি করব, ওই কথাটা ভাব, যদি দুটো চকলেটের দাম 10 টাকা হয় তাহলে 5টা চকলেটের দাম কত হবে? কিভাবে বার করলি? না, হলো না। দুটো চকলেটের দাম 5 টাকা 10 টাকা যদি হয় তাহলে এক একটা চকলেটের দাম কত? হ্যাঁ 5 টাকা, তাহলে 5টা চকলেটের দাম কত হবে? দোকানে যাস না কখনো, জিনিস কিনিস না, পাওয়া যেত এগুলা। দুটো চকলেটের দাম যদি 10 টাকা হয় তাহলে একটা চকলেটের দাম বলি 5 টাকা, তাহলে 5টা চকলেটের দাম কি হবে? 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। ওই একই লজিক এখানে করলাম, দুটো চকলেটের দাম এখানে কত? 3 টাকা, তাহলে একটা চকলেটের দাম কত হবে? 3/2। 3/2 কত হয়? 3/2 কত হয়? ওটাই চেক করছিলাম, বুঝে বললি নয় দোকানের লজিক লাগাই। ঠিকই 1.5 টাকাই হবে, বা এখানে করলে 1.5 গ্রাম আসবে। আমি ডিভাইড করবো না, এরকমই রেখে দেবো। আচ্ছা, আমরা তো 1 গ্রাম এক্স এর কথা বলছি না, কোয়েশ্চেনে কত গ্রাম এক্স এর কথা বলা আছে। এখন কোয়েশ্চেনের দিকে তাকা আরেকবার, দেখ কি বলছে। 50 গ্রাম অফ এক্স কতটা ওয়াই এর সাথে কম্বাইন করবে বার করতে বলেছে। তাহলে আমরা কি করব, তাহলে দেয়ারফর একটা চকলেটের দাম যদি অত হয় তাহলে 50টা চকলেটের দাম কত হবে? 50 দিয়ে ওটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো। তাহলে 50 গ্রাম অফ এক্স কম্বাইন্স উইথ 3/2 ইন্টু 50 গ্রাম অফ ওয়াই। তাহলে 2 দিয়ে এটাকে কাটলে কত হবে? 25। 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 75 গ্রাম অফ ওয়াই। তাহলে দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল অ্যান্সার। বোঝা গেল কথাটা? না, এই স্টেটমেন্ট বানানোটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে করতে হবে। স্টেটমেন্টটাকে দেখ, আমি এভাবে লিখেছি, কারোর মনে হতে পারে যে না আমি তো এটাও বলতে পারি যে 3 grams of y combines with 2 gram of x, সেম থিং, জাস্ট উই হ্যাভ রিভার্স দ্য স্টেটমেন্ট। तो ওইভাবে কখন লিখবো? सपोज वी हैव द सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिला है ना, खाली वहां पे जो 50 ग्राम ऑफ x था ना, वहां पे मैंने लिख दिया 50 ग्राम ऑफ y। तो फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, खाली वो वाला चेंज कर लेंगे। क्वेश्चनটাকে আরেকবার নতুন করে লিখে ফেলা, এটা করে নে, তারপরে কোশ্চেনটাকে আরেকবার লিখ, খালি ওই জায়গাটাই চেঞ্জ করবি, 50 গ্রাম অফ y reacts with so যা আছে। আমি যেভাবে করালাম এইভাবেই করবি, বইয়ে কিন্তু শর্টকাটে সলভ করা আছে, ওটা করতে যাস না, এখন কনফিউজিং হবে। আর একটু অভ্যাস হয়ে যাক, তারপরে এক স্টেপে করবি। এই চ্যাপ্টারটা করিয়েছে স্কুলে তোদের, লুইস ডট স্ট্রাকচার বলে কিছু করিয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। খাতাটা আনছি স্কুলের, দেখি একটু কি করাইছে।
लिखा क्वेश्चन फिर से, उस क्वेश्चन को फिर से लिखो, खाली वो 50 ग्राम ऑफ एक्स के जगह पे 50 গ্রাম অফ ওয়াই डाल दो। হ্যাঁ এগুলোই করেছে, এটাই আমি দেখতে চাচ্ছি, খালি এটাই এইভাবে করে দিয়েছে না। আর এগুলো আসবে বলছে, কেন তোকে যে পাঠিয়ে দিলাম আমি গ্রুপে, ঠিক আছে আমি আজকে তো করাবো কিছু জিনিস, ওখান থেকে পেয়ে যাবে অনেকগুলোই। अच्छा नेक्स्ट चलो सेम क्वेश्चन, खाली वहां पे क्या है रेशियो रिमेन्स द सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। देखो ये चीज दिमाग में डाल लेना है, निकालना क्या है। लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे, वाई निकाल रहे थे ना, एक्स से जगह वाई बसाई दे, खाली 5 बार बोले भलाई जी। তো লাস্ট কোয়েশ্চেনে কি বার করছিলাম, একবার লাস্ট কোয়েশ্চেনটা একবার পর, যে ইফ 50 গ্রাম অফ এক্স রিঅ্যাক্টস কমপ্লিটলি দেন হাউ মাচ অফ ওয়াই উইল বি নিডেড না রিকোয়ার্ড, এরকম কিছু ছিল তাই তো। তো লাস্ট কোয়েশ্চেনে কি ওয়াই বার করছিলাম, এখানে কি করব, এখানে লাস্ট স্টেটমেন্টটা আমি আবার বলে দিচ্ছি মিলিয়ে নে, ইফ 50 গ্রাম অফ ওয়াই রিঅ্যাক্টস কমপ্লিটলি হাউ মাচ অফ, এখানে এক্স উইল বি রিকোয়ার্ড হবে, তো ওখানে এক্স উইল বি রিকোয়ার্ড করে দে, ঠিক করে নে, ঠিক করে নে কোয়েশ্চেনটাতে হাউ মাচ অফ এক্স উইল বি রিকোয়ার্ড এন্ডে। আমি সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আবার বলছি, ইফ 50 গ্রাম অফ ওয়াই রিঅ্যাক্টস কমপ্লিটলি কমা হাউ মাচ অফ এক্স উইল বি রিকোয়ার্ড হবে, ঠিক করেছিস কোয়েশ্চেনটায়। সো এখানে বার করছিটা কি এক্স কে বার করছি, তাহলে ওই যে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা যে বানাচ্ছিলাম ওটাকে কিভাবে বানাবো, এমন ভাবে লিখবো সো দ্যাট the statement ends with the particular element which we are trying to calculate। তাহলে এখানে x বার করতে যাচ্ছি, তাহলে স্টেটমেন্টটাকে x দিয়ে শেষ করব। বলতো একবার কি লিখতে পারি তাহলে এই কথাটাকে, x से खत्म करना है स्टेटमेंट को, क्या बोल सकते हैं फिर से, वेरी गुड। আর কেউ যদিও বলে দিল তাও বল এবার। 1 কেন আবার, রেশিও কি বলছে, রেশিও তো 2:3 আছে, ওটা তো পরের লাইনে আমরা চেঞ্জ করেছি। ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা কি বানাবো, এই যে রেশিওটা থেকে কি বললাম, এই রেশিওতে কি বলছে তোকে কতটা এক্স 2 গ্রামস, সেটা কতটা ওয়াই এর সাথে কম্বাইন করছে, তাহলে স্টেটমেন্ট এটাকে ইংলিশে একটা পুরো লাইনে কি বলবো, एग्जैक्टली एक्स दिए शेष करबो, ताई स्टेटमेंटটাকে পাল্টে দিলাম এখানে, যেটা লাস্ট केस में हमने y से खत्म किया था बिकॉज तो y निकाल रहे थे। तो এই কোশ্চেনটাতে খালি কি করব, 3 গ্রাম অফ y কম্বাইন্স উইথ 2 গ্রাম অফ x। এইবার তারপরে তুই ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করবি, সেই 1 গ্রাম অফ ওই সব করবি, করে আমাকে ফাইনালি বল অ্যানসার কত আসছে। ডেসিমাল করতে হবে না, ফ্র্যাকশনে এনে ছেড়ে দিবি, যতটা সিম্পলিফাই করতে পারিস ফ্র্যাকশনটাকে সিম্পলিফাই করে ছেড়ে দিবি। शाश्वत चिंगम जब आ रहा है फिर क्यों, और कौन है, नेक्स्ट दिन दिखेगा जो भी निकाल देंगे सीधा क्लास से बाहर। एक बार अच्छे से बोल चुके हैं, सेकंड टाइम आज बोल रहे हैं, थर्ड टाइम नहीं बोलेंगे।
क्लास से पहले जो भी चबाना है चबाओ, क्लास के बाद चबाओ, क्लास में बैठ के चबाने की जरूरत क्या है वही से। কি করছিস কম্বাইন্স উইথ এটা, তাহলে देयरफॉर 50 গ্রাম অফ এক্স কম্বাইন্স উইথ, এইদিকে চলে গেলে কেন? এইখানে কর। ম্যাথসে কিভাবে করিস? ম্যাথসে এরকম করে লিখিস? তাহলে ম্যাথসের মতনই তো করছি আমরা। এই 50টাকে 50-র মতো লেগে 30 লাগছে। দেখি দেখি তো সরা পাল্টা রাখলে বুঝবো কিভাবে। মাল্টিপ্লাইটা করে দে এটাকে। উপরের গুলো এখানে উপরে কি আছে? 2 আছে, এখানে উপরে কি আছে? 50 আছে। 10 2 × 50 করলে 10 আছে। ভাই রে, লেখ বাকিটা ইকুয়াল সাইন দে এখানে। ঠিকই আছে, হয়ে গেছে। कर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले दो जन जो, তাহলে 100/3 ग्राम फाइनल आंसर আসলো। এই তোর হইছে? अभी पेज नंबर आ जाएंगे हम लोग 167 में। नीचे में देखो एग्जांपल 9.3 है, ये घर पे सेम तरीके से करना है। বইয়ে শর্টকাটে করেছে, আমরা এইভাবে করব না, যেভাবে দেখালাম ওইভাবে কর, ভুল হবে না। वो वाला करना है पहले। एंड पॉज एंड पॉन्डर, देखो नीचे बॉक्स है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है 1 और 2 ये दोनों को भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोली 3 और 4। 3 वाला में क्या है, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। तो 40 और 60%, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 40:60 कितना आएगा? 2:3 आएगा, है ना। तो रेशियोते कन्वर्टটা নিজে করে নেব, বাকি কাজটা সেম ভাবেই করব। বোঝা গেল? 4 নাম্বারটাতে রেশিও দেওয়া আছে, আশা করি পারবি, তো এগুলা বাড়ি থেকে করবি। আগে যাই, নেক্সট পেজে আয়, পেজ 168, ডাল্টনস অ্যাটমিক থিওরি। তো অ্যাটমের সম্বন্ধে ফার্স্ট একজন সায়েন্টিস্ট যিনি ঠিকঠাক একটা কিছু থিওরি, মানে एटलीस्ट ঠিকঠাক বলাটা সঠিক হবে না, बट ऐसा है कि उस टाइम के लिए ठीक ठाक ही था। तो डाल्टन का जो थ्योरी है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो पोस्टुलेट्स बोला जाता है इसको। डाल्टन का थ्योरी को लॉ नहीं बोला जाता है। तो पहला वाला जो पोस्टुलेट है, देखो क्या लिखा है, इन पोस्टुलेट्स को पूरा याद रखना है। आ सकता है कि राइट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या 4 पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स, कुछ भी दे सकता है। पहला वाला पॉइंट लिखा क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल हिसाब, ये हमने पहले भी सीखा था। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। Second is atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. They are indivisible. That was told by Dalton, but after him वो हमने सीखा उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और भी छोटा छोटा पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। तो ये पॉइंट जो है पूरा पूरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी डाल्टन पोस्टुलेट्स के अंदर हमको तो पढ़ना ही है। थर्ड है एटॉम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बोला गया फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट अस से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो भी एटम होगा सब आइडेंटिकल इन मास होगा, प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। नाउ दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। वी हैव लर्नड अबाउट आइसोटोप्स इन द लास्ट चैप्टर ना। आइसोटोप्स क्या है, ऑक्सीजन का ही 2 आइसोटोप का मास अलग है, A216 और A218, दोनों का मास कितना है, 16, 18 अलग है। तो ये भी पूरा पूरी सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ये भी पूरा पूरी सही नहीं, होना चाहिए था वही कि डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट मासेस, बट वी हैव लर्नड आइसोबार्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का आइसोबार हमने आर्गन लिया था 18Ar40 एंड फिर कैल्शियम लिया था 20Ca40। दे आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स बट बोथ हैव द सेम मास नंबर 40 ना, तो मास सेम था दोनों का। तो ये भी पॉइंट पूरा सही नहीं, बट फिर भी ठीक है, उन्होंने बताया तो मानना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, 5th नंबर, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब एटम कंबाइन करेगा, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो ये एक सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर पता है, जो 1 2 3 4 ये सब नंबर को होल नंबर बोला जाता है। तो इन्हीं नंबर्स का रेशियो में कंबाइन करेगा। जैसे H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर नंबर का रेशियो लिया जाए, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है H2, एंड ऑक्सीजन कितना है 1। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर इज 2:1। तो दैट वाज टोल्ड बाय डाल्टन। दिस इज आल्सो नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट वो नॉट ट्रू वाला पार्ट हम लोग देखेंगे ही नहीं 10 तक, तो ठीक है, मान के चलते ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो एटम्स में जो
सॉरी कंपाउंड्स में जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो नंबर होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम एंड दैट वाज टोल्ड बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। भी ये चीज इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा था, वो मास के हिसाब से बोला, डाल्टन ने वही नंबर के हिसाब से बोला है। तो ये 5-6 पॉइंट जो है पूरा याद रख लेना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, कुछ चेंजेस हमको करना नहीं है। Now till now we have learned कि compounds are formed, some laws are applicable for compounds and then Dalton's atomic theory, ये सब सीख लिया। अभी जानना है कि how do atoms combine and why do atoms combine। Now first question हम लोग उसी से start करते हैं, why do atoms combine। तो periodic table मतलब set of डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया जाए तो उनमें से देखा जाता है द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। कौन लोग हैं ये सब? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब नाम आता है इन लोगों का। अभी इनमें क्या ऐसा स्पेशल है जो बाकियों में नहीं है? बाकी लोग स्टेबल क्यों नहीं है? तो वो अगर देखें तो मैं लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नियोन। नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो के शेल में विल फाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आर्गन का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खाली दोनों का अभी दिखा रहा हूँ। आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, तो K2L8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। नेक्स्ट शेल में कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो इनमें एक स्पेशलिटी देखा जा रहा है कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट मतलब क्या है? ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8। So it is found that elements which have 8 electrons in their outermost shell, or in other words we can say that elements which have 8 valence electrons, बोलते पड़ी ना, number of valence electrons is 8, they are found to be very much stable. Other elements, let us say oxygen, configuration क्या है? K2L6। ऑक्सीजन का अगर आउटरमोस्ट शेल में देखा जाए 8 तो है नहीं, 6 है। तो ये क्या सोचेगा कि नहीं, मेरे करीब एक दोस्त बैठा है नियोन, उसके पास ये जो है उसकी वजह से बहुत खुश है, तो मेरे पास भी अगर वो हो जाता तो मैं भी बहुत खुश हो जाता। तो इसी वजह से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। एंड कितना गेन करेगा? 2। एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। देख আমরা অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি ক্যালকুলেট করেছি, একটু আগেই বললাম 6 কি করব, 8 - 6 করে 2 আসবে। ওই 2টা কোথা থেকে আসলো? বিকজ ইট ওয়ান্টস টু গেইন 2 ইলেকট্রনস to get the configuration of neon and thus become stable। तो this tendency of elements, इसका ही अगर वो नंबर देखा जाए कि how many electrons will be gained by somebody, that is valency। now gain तो देख लिया, एक loss का भी देख लेते हैं। let us take the example of sodium। सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो K2L8 তারপরে কত হবে? M বল फटाफट 1। सोडियम जो देखे, सोडियम का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखे, आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 8 बनाना है, कैसे बना सकता है? यहाँ पे अगर 8 बनाना है तो और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो इट माइट से लेट अस कंसीडर कि इट विल एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इसके पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है। क्या रास्ता है? सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड बाय सोडियम, तो ये शेल क्या हो गया? खाली हो गया। एंड खाली शेल को क्या हम लोग वैलेंस शेल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो वैलेंस शेल ऑटोमेटिकली तब कौन बन गया? L, एंड तब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज व्हाई सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेके वो खुश नहीं है, उसको भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। एंड 2 रास्ता है, इधर बाय गेनिंग 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स और बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एंड लॉजिकली কোনটা বেশি ইজি মনে হচ্ছে? 7টা নেওয়া না একটা ছাড়া, एक छोड़ना ही ज्यादा इजी हो रहा है ना। तो दैट इज व्हाई सोडियम विल ऑलवेज lose electron, it will never gain electron। and how many electrons will be lost by it? 2 1। কোনো দিনও একের বেশি ইলেকট্রন ও ছাড়বে না। always sodium will lose only 1 electron। and why does it do that? to become stable। and how is it becoming stable? by getting the octet configuration, or যদি আরেকটু ক্লোজলি দেখি, it is nothing but the configuration of neon। বুঝা গেল? তাই everybody has a tendency to attain the configuration of the nearest noble gas, and to do so it might release electrons as in the case of sodium, or it might accept electrons as in the case of oxygen। এবার फटाफट বলতো নাইট্রোজেন যার অ্যাটমিক নাম্বার 7 কনফিগারেশন কি হবে? L5।
নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস তাহলে কি পাচ্ছি আমাদের, সেই নিয়ন আছে আমাদের, তাহলে কয়টা ইলেকট্রন ও নেবে না ছাড়বে, আগে বলা আমাকে। নেবে, কয়টা নেবে? দুইটা। L5 বললি তো, তিনটা। তো হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালেন্সি অফ নাইট্রোজেন? 3। বোঝা গেল? তাহলে ভ্যালেন্সি কি? ভ্যালেন্সি ইজ বেসিক্যালি দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস লস্ট, সোডিয়ামের কেসে দেখলাম, অর গেইনড। তো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালেন্সি অফ সোডিয়াম? 1। বোঝা গেল? আরেকটা এক্সাম্পল নেই। ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার 12, কনফিগারেশন করলে কত হবে? K2 L8 M2, ভ্যালেন্সি কত হবে? আর এটা লস করবে না গেইন করবে? লস হবে এর ক্ষেত্রে। समझ में आ गया? Now based upon these tendencies कि whether they want to accept or lose, they are categorized as metals and non-metals, जिसको लेके क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे। There will be a chapter called metals and non-metals, जिसमें इन्हीं लोगों के बारे में फिर से पढ़ना है। तो जो चीज़ अभी सीख रहे हैं ये सब 10 में जाके फिर अप्लाई करेंगे, इसीलिए शायद इतना चीज़ें अभी नहीं है तुम लोग का सिलेबस में। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताया बिकज আধাটা বলে দিলে বুঝবি না, মাথার উপর দিয়ে যাবে বা হয়তো কোয়েশ্চেন থেকে যাবে মনের মধ্যে যে এটা কেন হচ্ছে কি হচ্ছে। তাই পুরো লজিকটা শিখে নে, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लर्न इट इन क्लास 10 ना, तो सीखना तो है, अभी सीख लेते हैं। तो फिर से लौट आते हैं हम लोग का बुक की तरफ। तो वी हैव अंडरस्टूड कि एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल बाय देमसेल्व्स बिकॉज दे डोंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इफ दे वांट टू गेट दैट, तो इधर दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन और दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। Apart from these two methods, there is another way in which they can get the stable configuration of octet configuration. कैसे? By sharing of electrons. तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो शेयरिंग पढ़ेंगे, एंड कल जो पढ़ेंगे वो लूज और गेन वाला चीज़ें कल पढ़ेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a force of attraction starts acting between the atoms, and this force is called a chemical bond. And chemical bonds are classified mainly into two types. One will be covalent bond, another is ionic या फिर electrovalent bond. शेयरिंग के वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवैलेंट, ये दिमाग में डाल लेना है। एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर मतलब इधर लूजिंग और गेनिंग, इसके वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आयनिक। तो आज कोवैलेंट पढ़ेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट हेडिंग दो, कोवैलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड हेडिंग देंगे, उसके नीचे 2 पॉइंट्स लिख के रखेंगे। पहला पॉइंट लिखो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछा जाता है विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द आंसर विल बी कोवैलेंट बॉन्ड। एंड नेक्स्ट थिंग, कौन लोग शेयर करेगा, तो लिख के रखो व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन टू नॉन मेटल्स मतलब जो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उनको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। तो व्हेन टू नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, comma, a covalent bond is formed. उसी के नीचे ये वाला पॉइंट लिख के रखो, सब पॉइंट, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, OCTET, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नीचे लिखो, टेंडेंसी टू हैव 8 electrons in the outermost shell. এই কথা না, বরাবর তো नेक्स्ट इज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन में अलग क्या है पहले लिख लो, उसके बाद समझा रहा हूं। टेंडेंसी टू हैव 2 electrons in the outermost shell,
जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है K1, एंड इसका करीबी सबसे करीब नोबल गैस है या इनर्ट गैस है हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या देख रहा है कि मेरे करीब जो नोबल गैस है हीलियम है, एंड हीलियम बहुत खुश है। एंड वो कैसे खुश है? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो खुश है। हाइड्रोजन ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे भी तब 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो এটা কোনো দিনও कभी भी ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम में जाबे ना। हाइड्रोजन का टेंडेंसी क्या रहेगा तब? 2 इलेक्ट्रॉन रखना। तो ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा ही नहीं कभी। तो इस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जहां पे टेंडेंसी टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये रूल को बोलते हैं डुप्लेट रूल। तो एज अ रूल मैं नहीं लिखा रहा हूँ, याद रखना है डुप्लेट मतलब 2। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन कौन लोग ऐसा है जो लोग ये डुप्लेट मानना चाह रहे हैं, एंड कौन कौन है जो ऑक्टेट मानना चाहेगा। डुप्लेट में याद रखना है, हीलियम तो खुद तो डुप्लेट बना के बैठा है एंड वो खुश है। हाइड्रोजन उसका करीबी है, हाइड्रोजन भी उसी का कैटेगरी में आता है। एंड ऑल्सो लिथियम, फिर बेरिलियम एंड बोरॉन, दीज आर द 5 एलिमेंट्स जो लोग ऑक्टेट नहीं मानता है, वो बोलता है डुप्लेट बनाएंगे हम, एंड हम उसी से खुश हैं। एंड इन पांचों को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट जो सब हम जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ देम फॉलो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्टेट रूल। तो इसीलिए इन पांचों को याद रखना है। उसका मैंने एग्जांपल नहीं लिखाया क्योंकि सबका ही वही देखेंगे, एक्सेप्शन जो है इनका ही मैं अलग से लिख दिया, याद रखना है इन सबको। अभी हम लोग प्रॉपरली कोवैलेंट बॉन्डिंग देख लेते हैं। तुम लोग उसी हेडिंग के नीचे लिखते जाओ। तो हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इट इज K1, एंड उसको क्या चाहिए था? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था। सो विल इट गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन? गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो गेन करना चाह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं है, सब्जी जैसा तो नहीं कि चाहिए चलो उगा लेते हैं, इसी से लेना पड़ेगा, है ना। जन्म तो दीते पारबो ना इलेक्ट्रॉन के, कारोर थेके नीते होबे। तो सपोज वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स फेस टू फेस, दोनों को बिठा दिए एक के बगल में दूसरे के। अच्छा, डायग्राम ही ड्रॉ करो। से दिस इज 1 हाइड्रोजन एटम, सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर में शेल कितना? एक ही है, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना? एक ही है। এই মাঝামাঝি आगा तो इलेक्ट्रॉनটাকে। एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम जिसका सेंटर में इसका भी न्यूक्लियस है, एंड इसका भी के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है। अभी पहला वाला हाइड्रोजन का पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो वो क्या करेगा? दोस्त से मांगेगा। अभी दोस्त से सपोज ये मांगने गया, दोस्त का क्या स्टोरी है? दोस्त को भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, তাহলে চাই এ চাচ্ছে বন্ধু থেকে, কিন্তু বন্ধু কি দেবে? दोस्त देगा इसको? नहीं देगा। देने से तो वो खुद को ही तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो कहाँ से देगा? तो जब दोनों को ही चाहिए, कि मान लो ऐसा एग्जांपल एक दी थॉट, सपोज देयर आर 2 फ्रेंड्स, दोनों के पास 5-5 करके रुपए हैं, दोनों गया दुकान में पेन खरीदने, दोनों को ही कोई एक पेन चाहिए जिसका दाम 10 रुपए करके है। पहला दोस्त गया दुकानदार के पास 5 रुपए लेके, दाम सुन के रिटर्न आ गया, क्योंकि 5 रुपये मिलेगा नहीं वो 10 वाला पेन। सेकंड दोस्त गया, उसको भी नहीं मिलेगा। तब अभी दोनों जन मिलकर प्लान किया कि चलो भाई अकेला तो खरीद नहीं सकते, तो दोनों मिला के 5-5 रुपए मिला के 10 बनाते, दुकान से खरीद लेते एक तो पेन, 2 दिन हम यूज कर लेंगे, 2 दिन तुम यूज कर लेना। तो इस तरह से क्या है, दे आर काइंड ऑफ पुलिंग देयर रिसोर्सेज टुगेदर, या फिर दोनों का जो पैसा है एक जगह करके दोनों ही खुश बन जा रहा है। अभी इसमें क्या है, कोई प्रॉपरली पेन किसी एक जन का हुआ नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक जन को मिल रहा है वो पेन, दोनों का ही वो पेन है। सिमिलर स्टोरी विल हैपन हियर, कि दोनों के पास वही 5-5 रुपए हैं, दोनों को कितना चाहिए? डबल चाहिए ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन আছে তাহলে দুটো चाहिए। सो इन दिस केस द 2 हाइड्रोजन एटम्स विल कम इनटू एग्रीमेंट कि चलो ठीक है, जो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है इनको एक जगह करते हैं, ये तुम्हारे पास भी रहेगा कुछ देर मेरे पास भी रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे शो करेंगे, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम आया मर्ज हो गया एक साथ, ठीक है, मिक्स हो गया थोड़ा सा, एंड वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन रीजन में बैठ गया। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक था इस हाइड्रोजन का, है ना, दूसरा वाला कहां से आया? सेकंड हाइड्रोजन से आया। अभी इस हाइड्रोजन का सर्कल को देखे, उसमें क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया,
इस हाइड्रोजन का पर्सपेक्टिव से भी देखें, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो दोनों ही खुश हैं। बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिंगल हाइड्रोजन एटम, दोनों का जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों का ही उसमें ओनरशिप है। तो दीज काइंड ऑफ क्या बोले उसको, दीज काइंड ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंड इसमें क्या हुआ, शेयरिंग हुआ दोनों के बीच में, दोनों शेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी मिल गया, दोनों का ही डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बुझा गया लोग? चले, हाइड्रोजन इज अ मेटल और नॉन मेटल, क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? कि बोल रहा हूँ वाटर, कौन से एलिमेंट्स को मेटल बोल सकते हैं? एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉन मेटल बोलेंगे। और मेटल किसको बोलेंगे? उल्टा, एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? लेना चाह रहा है कि छोड़ना चाह रहा है? हैं? लेना चाह रहा है, उसके पास एक है और एक चाहिए उसको, तो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन इज अ मेटल। एंड ये हाइड्रोजन मेटल है तो उसका दोस्त भी, सॉरी ये भी नॉन मेटल है तो उसका दोस्त भी नॉन मेटल है। तो द बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, हमने पहले लिख दिया था। तो ये এটা জিজ্ঞেস করে অনেক সময় যে what type of bond is formed between two non-metals, the answer will be covalent bond। মাথা ঢাইকে রাখলে না ফুসফুস করলে শোনা যায়। পড়াশোনা একটু মনটা দে, बातें नहीं करना है, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका फॉर्मूला क्या है? H2। हमने सुना है हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, तो H2 का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन समझ लेते हैं। Cl2 में क्या है? 2 Cl atoms are combining together। Now first we have to understand कि whether it is a metal or non metal। तो एटॉमिक नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन करें तो K2L8M7। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना चाहिए इसको? मतलब 1 की गेन ना लूज, गेन। सो इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो कौन सा बॉन्डिंग करेगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज 2 क्लोरीन एटम्स दोनों ही नॉन मेटल, तो दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। तो चलो लेट अस देन अगेन ड्रॉ। सो एक क्लोरीन एटम में कितना शेल्स दिख रहा है हमको? KLM 3 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज ऐसे दिखा दें। नेक्स्ट शेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा गैप देके मैं दे रहा हूँ, 8। एंड इन द आउटर मोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 7। चलो यहाँ पे एकदम राइट में मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ये हो गया मेरा पहला क्लोरीन एटम। नीचे लिख देना है क्लोरीन एटम। इसके साथ क्या है? नेक्स्ट क्लोरीन एटम का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको भी बगल में ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी सेम तरीके से पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 7 का एक इलेक्ट्रॉन मैं इसकी तरफ फेस करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी 7 को बाकी चारों तरफ दे देंगे। 2 3 4 5 6 एंड देन 7। दिस इज द सेकेंड क्लोरीन एटम। तो इसमें भी क्या है? फर्स्ट क्लोरीन एटम वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहाँ से लेगा? दोस्त से मांगेगा। अभी से वो वाला दोस्त देगा इसको इलेक्ट्रॉन? देवे देवे ना, तो कहना ओरो तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताले ना ये इसको मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये इसको देगा। तो तब जाके क्या ऑप्शन है? दोनों के बीच में शेयरिंग ही ऑप्शन है। एंड आफ्टर शेयरिंग जो बॉन्ड बनता है फिर से कोवैलेंट। तो Cl2 में भी क्या बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट। तो नेक्स्ट स्टेप दिखाना है, আমার জায়গা নেই, আমি উপরটা রাব করছি, তোরা নিচের দিকে বা ডান দিকে দেখিয়ে দিস জায়গা থাকলে। तो इसके नीचे जगह है तो राइट साइड में करो, नहीं है तो नीचे एरो देके, ऐसा एरो देके फिर ड्रॉ करना है। तो मैं ऊपर बना रहा हूँ। शेल्स तो हम लोग का उतना ही है, 3 ही है। सेकेंड वाले का भी क्या है? शेल हमको 3 बनाना है, लेकिन ऐसा ओवरलैप करा के। इलेक्ट्रॉन्स इसका फर्स्ट शेल में 2, इसमें 8
इसमें 7 जो इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन में इनमें शेयरिंग हो रहा है, तो इसको क्या है, ये कॉमन রিজিয়ন में लिखेंगे। তো লেফটেরটাকে আমি আঁকাচ্ছি, ধর লেফটের ইলেকট্রনটাকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে দেখাচ্ছি, তাহলে এখানে আছে। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐसे दिखा दिया। अब ये वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला शेल में फिर से 2 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कराया, तो वो ये कॉमन रीजन में घुस गया। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स था उसको चारों तरफ ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे लिखना है क्लोरीन मॉलिक्यूल। नाउ इस मॉलिक्यूल को कॉपी में छोटा करके रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो 2 क्लोरीन एटम को एक के बाद हम लोग एक लिखेंगे। अब नहीं जा रहा देखने, ये जो कॉमन रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 1 बॉन्ड। एक बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड को एक डैश से, हाइफन जैसा। तो अगर हम लोग के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स देयर विल बी ओनली 1 बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स। तो ऐसा Cl-Cl, ये हो गया मेरा क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग O2 करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ना सवाल, तो O2 पहले ड्रॉ करने से पहले ये समझ लेना है O2 इज अ मेटल और नॉन मेटल। चलो फटाफट कॉन्फ़िगारेशनটা লিখে ফেলা সবাই নিজের খাতায়, তারপরে আমাকে বলবি এটা মেটাল না নন মেটাল। কি এটা মেটাল হবে না নন মেটাল হবে, एंड কয়টা ইলেকট্রন নেবে তাহলে, 2টা। तो ये चीज याद रखना है। देखो क्लोरीन में शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया था, কি সমস্যা, এইদিকে কথাটা শোন, একটা দরকারি কথা বলছি আর এদিকে কথা বলে যাচ্ছে। सॉरी, लास्ट केस में जब क्लोरीन वाला डायग्राम हमने किया था, हर एक क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से कितना हमने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कराया था, ओनली 1। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने चारों तरफ लिख दिया। ऑक्सीजन में तब कितना पार्टिसिपेट कराएंगे, तो याद रखना है जितना चाहिए उतना ही पार्टिसिपेट कराएगा। तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन्स में से दोनों को पार्टिसिपेट कराएगा अभी बॉन्डिंग में। तो এই জিনিসগুলো ফার্স্টে কনফিগারেশন লিখে তারপরে দেখে বুঝে তারপরে ড্রটা করা স্টার্ট করব। বোঝা গেল কথাটা? তো আমি আঁকাচ্ছি, সাথে তোরাও আঁকা। তো ফার্স্ট স্টেপ চলো আমি এদিক থেকে শুরু করি। তো অক্সিজন হ্যাজ 2 shells, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल। फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में हमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने इस तरह से लिखा टू शो दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन विल पार्टिसिपेट इन शेयरिंग। এখানে यदि 3 अगर किसी के लिए जरूरत होगा तो ऐसे 3 को दिखा देंगे। सेकंड ऑक्सीजन एटम को फिर से बनाएंगे। देखो ये राइट वाला ऑक्सीजन का फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो ठीक है। बाहर वाला शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से 4 हमने यूटिलाइज नहीं किया तो उसको नॉर्मली लिख दिए।
जो दो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया उसको कॉमन रीजन में मैंने दे दिया। अभी सेम तरीके से इस ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से कितना पार्टिसिपेट कर रहा था बॉन्डिंग में, 2, तो उस 2 को क्या है ये शेयर्ड रीजन में डाल देंगे। बाकी और कितना बचा है, 4 बचा है, तो चारों को चारों तरफ ऐसे हमने दे दिया। नीचे यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन एटम, अगेन ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पहले ही मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कंबाइन होने के बाद जो फॉर्म बन रहा है ना। इसको अभी फिर से वो डैश वाला बॉन्ड से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखेंगे किसे, এখন কি বললাম, ওয়ান বন্ড মিন্স ওয়ান পেয়ার অফ ইলেকট্রনস। এখানে শেয়ার্ড রিজনে কটা পেয়ার আছে, দুটো পেয়ার আছে। দেখ এখানে একটা পেয়ার, এখানে একটা পেয়ার, तो कितना बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, 2 बॉन्ड रहेगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड्स इक्वल साइन जैसा दिखेगा। तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस माइट आल्सो बी आस्क्ड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आंसर विल बी डबल बॉन्ड। पहला वाला तब क्या था, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा कितना टाइप ऑफ बॉन्ड हो सकता है कोवैलेंट में, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, देख लिया। अनदर केस में भी ट्रिपल बॉन्ड। अभी तुम लोगों को करना है नाइट्रोजन। तो जैसे अभी सीखा हमने, पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर समझो कितना शेयर कराएगा, फिर उस हिसाब से ड्रॉ करो। तो फटाफट देखी कर, तारपरे আমরা कंटिन्यू করব। আবার মোবাইলটা এখানেই থাকবে কেউ। চলো अगेन लेट अस कंटिन्यू। नाउ इन ऑल दिस मॉलिक्यूल्स the two atoms that were participating are of the same element ना, दोनों ही ऑक्सीजन था, दोनों ही नाइट्रोजन था। अभी तक हुआ नहीं, क्या किया इतना देर तक, बातें कर रहा था बैठ के। वो तो ठीक है, तो तब समझ नहीं आया था जब कराए थे, तो बोलना है ना कि समझ नहीं आ रहा है सर। कितना शेयर कराएगा नाइट्रोजन, कितना चाहिए उसको, तो 3 शेयर कराएगा। तो पहला वाला नाइट्रोजन तो तुमने 3 फेस कराया इसके तरफ, दूसरा वाला नाइट्रोजन में क्यों नहीं फेस कराया, उसका तो पूरा ऐसे घुमा फिरा बैठा है। चलो ये कंप्लीट करना है घर में। अभी फटाफट नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे वाटर H2O। कथा ना, H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए हाइड्रोजन का K1 और ऑक्सीजन का K2L6। तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। तो हाइड्रोजन शेयर कितना कराएगा, 1 ही कराएगा। ऑक्सीजन उससे खुश होगा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो इसीलिए ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम। इसीलिए हर एक ऑक्सीजन के लिए कितना करके हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको ड्रॉ भी उसको उसी हिसाब से करेंगे। बीच में ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन में क्या है, 2 शेल्स हैं, तो दिखा देंगे ऐसे। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसा सब में है, इसमें भी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कराएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कराएगा। बाकी कितना बचा है, 6 में से, और 4, 2 ऊपर दे देंगे, 2 नीचे दे देंगे। इधर पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का 1 ही शेल है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, फेस करा के ड्रॉ कर दिए। इधर पे भी एक और हाइड्रोजन को ड्रॉ करेंगे जिसमें 1 ही शेल होगा। तो नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन एटम। चलो साथे साथे कर, ऑक्सीजन एटम, अनदर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का जो सब इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से दोनों साइड में एक एक करके सॉरी ऑक्सीजन का दोनों साइड में एक एक करके शेयर करा दिया। हाइड्रोजन का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो शेयर करा दिया, तो बीच में रहेगा, इसका भी यहाँ बीच में रहेगा। तो ऐसा होगा H2O हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल।
एंड वाटर मॉलिक्यूल को तब उसी तरह से अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो बोल तो देखिए लेफ्ट साइड में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड रहेगा, सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड अगेन, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। एक होमवर्क रहेगा CO2, तभी इनका अगर अभी कंपाउंड्स देखा जाए नाम वगैरह, तो नाम कैसे बोला जाएगा, जैसे वाटर तो हम लोग बोल रहे हैं बट वाटर इज नॉट द एक्चुअल केमिकल नेम ऑफ H2O, तो H2O का अगर नाम बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे। तो पेज नंबर 172 में आएंगे अभी। पहला चीज अगर 1 2 3 ये नंबर बोलना है तो उसके लिए कुछ कोड्स हैं, तो पेज 172 में एकदम टॉप में चले आओ, थर्ड लाइन पे देखो प्रीफिक्सेस सच एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा दिख रहा है। तो इन नंबर्स के लिए 1 अगर है तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 अगर है डाई, 3 अगर है ट्राई और टेट्रा, पेंटा, ये सब आते जाएगा एक के बाद एक। एंड देयर आर अदर रूल्स ऑल्सो, बट मैं उतना टेक्निकल रूल्स में जाना पसंद नहीं करता हूँ, उससे अच्छा है हम लोग एग्जाम्पल से चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विथ 2 कंपाउंड्स, बोथ आर मेड आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक है CO, दूसरा है CO2। CO में कार्बन तो कार्बन ही नाम बोलेंगे एंड ऑक्सीजन का नाम बोलेंगे ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। नाउ कितना ऑक्सीजन है, पहला वाला में CO में 1 ऑक्सीजन, दैट देयरफॉर 1 के लिए कोड क्या था यहाँ पे, मोनो, दैट इज व्हाई द नेम इज कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में मोनो का भी एंड अगर देखे O से हो रहा है मोनो, एंड ऑक्साइड का स्टार्ट भी देखे O से हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस दोनों में ही O कॉमन दिख रहा है तो एक O को हटा देंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, कार्बन तो लिखना ही है, उसके बाद मोनो में MONO, इसका O लिख दिया, बाकी पूरा ज्वाइन कर देंगे तो एक ही O रहेगा मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट CO2 अगर हो गया 2 के लिए क्या कोड है यहाँ पे, डाई, देयरफॉर नाम क्या है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तब वाटर का क्या नाम बोलेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो वाटर का केमिकल नेम एक्चुअली क्या होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कभी कभी बोला जाता है, बट मोनो वहाँ पे बोलना अननेसेसरी है, सो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड खाली बोला जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, तो बुक में जितना एग्जाम्पल्स ये सब हमको करना है। जैसे CS2 का नाम क्या होगा, तब कार्बन सल्फाइड उसके लिए, एंड 2 है इसीलिए कार्बन डाइसल्फाइड। PCl3, P का फॉस्फोरस एंड C को क्लोराइड बोलेंगे, कितना है 3 है, तो ट्राई क्लोराइड। सिमिलरली PCl5 का क्या नाम होगा, PCl5, 5 এর জন্য কোডটা কি ছিল, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, बस सिंपल। SF6 সালফার फ्लूराइड, और फ्लूराइड कटा আছে 6টা, सो हेक्स, तो हेक्स के एंड में एक A लाते हैं तो हेक्स आ फ्लूराइड। तो याद रखना है, जैसे फ्लूराइड का नाम क्या से स्टार्ट हो रहा है, वावेल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे एक वावेल को लाया जाता है A, तो हेक्स आ फ्लूराइड बोलेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट N2O4, तो 2 नाइट्रोजन इसलिए डाई नाइट्रोजन, एंड 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रा ऑक्साइड। तो टेट्रा ऑक्साइड में फिर से A और O 2 है तो A को हटा दिया जाता है तो टेट्रोक्साइड बोल देते हैं, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, पेंटा ऑक्साइड नहीं बोला जाता है, वो A को फिर से हटा के पेंटॉक्साइड। तो ये एग्जाम्पल गुलो एक पढ़बी बाड़ीते। सिमिलरली H2 का जो नाम हम लोग हाइड्रोजन बोलते जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट टेक्निकली करेक्ट, तो इसका नाम क्या होना चाहिए H2 का, H2 खाली बोला हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 2, तो 2 এর জন্য অক্সাইড কোথা থেকে আসছে, H2 এর মধ্যে অক্সিজেন আছে, डाई हाइड्रोजन, सिंपल। N2 का नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन। O2 का नाम क्या है केमिकल नेम, डाई ऑक्सीजन। तो O2 एक्चुअली আমরা যেটা অক্সিজেন বলি থাকি,
दैट इज नॉट ऑल्सो टेक्निकली करेक्ट, बट ठीक है वो चलता है उतना। लेकिन जब हमको प्रॉपर केमिकल नेम पूछा जाए तो वी हैव टू रिमेंबर दिस प्रीफिक्सेस एंड इसको डाल के ही नाम बोलना है। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज properties. The compounds which are formed due to formation of covalent bonds are called covalent compounds. And covalent compounds का properties अगर in a nutshell अगर एक जगह पे हमको चाहिए तो then we'll consult all in one. तो নতুনটা আছে না ये तो বা যার কাছে যেটা আছে বাকিদের অল ইন ওয়ান গুলো বার কর সব ও না 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 তোদের নেই এটা নতুন অ্যাড হয়েছে এই সিলেবাসে। আমি এটা গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে দেখে নিবি। এমনি ইন জেনারেল বলছি, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर कि इन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है ये बहुत कम होता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी, तो याद रखना है कोवैलेंट कंपाउंड्स विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनको डाला जाए तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पेंट, घर पे कभी पेंट मिस्त्री देखा है काम करते हुए, एंड आफ्टर दे आर डन विद देयर जॉब वो हाथ में पूरा पेंट वेंट लगा है, वो लोग पानी से देखना नहीं धोता है, किस चीज़ से धोता है? वो लोग देखना मांग लेगा तुमसे केरोसिन देना मांगे एक तो केरोसिन से धोता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द पेंट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए पानी से जितना भी धोया जाए वो उठेगा नहीं, वो किस में डिजॉल्व होगा तब? केरोसिन में। अच्छा केरोसिन सपोज नहीं है घर पे तब, तो देयर आर अदर सॉल्वेंट्स ऑल्सो जिसमें ये डिजॉल्व होता है। अदर एग्जाम्पल्स आर, जैसे वो देखना पेंट को ही डाइल्यूट करने के लिए उसमें एक ऑयल मिलाता है, टर्पेंटाइन ऑयल, या बांग्ला से देख भी पाती भाषा वाले तारपीन तेल है ना, दिस टर्पेंटाइन ऑयल दिस इज ऑल्सो अनदर लिक्विड इन विच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। अच्छा केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल, देन पेट्रोल, डीजल, ये सब भी हो सकता है। देन वी कैन से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है इसको, इसमें भी डिजॉल्व होगा। देन CHCl3 इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म, इसमें भी डिजॉल्व होगा। तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस, तो इनको याद रखना है। तो चलो एक ये पॉइंट खाली मैं लिखा दे रहा हूँ, इसमें क्लियरली लिखा नहीं है तो लिखो कोवैलेंट कंपाउंड्स, और नीचे लिख रहा है स्टार मार्क दिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvents, but soluble in organic स्लैश दिए, ऑर्गेनिक के बाद एक स्लैश दे देना है, देने के बाद ऑर्गेनिक स्लैश नॉन पोलर, नॉन हाइफेन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर POLAR पोलर, NON non hyphen POLAR polar solvents। now non polar solvents and organic solvents सेम ही चीज का दो नाम है। एग्जांपल्स उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो, केरोसिन कॉमा डीजल DIESEL कॉमा पेट्रोल कॉमा टर्पेंटाइन ऑयल TURPENTINE टर्पेंटाइन ऑयल कॉमा कार्बन CARBON कार्बन, उसके बाद स्पेस छोटा सा देके टेट्रा TETRA टेट्रा क्लोराइड একসাথে CHLORIDE। কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ফর্মুলা বলতে পারবি? আমরা তো ফর্মুলা থেকে নাম শিখলাম, 3 টেট্রা, ট্রাই ছিল 3 এর জন্য, টেট্রা কত হয় 4, তো CCl4 বোঝা গেল ফর্মুলাটা। নেক্সট ক্লোরোফর্ম CHLOROFORM ক্লোরোফর্ম এটসেট্রা। আরেকটা লিখে কমা দিয়ে বেনজিন BENZENE एटसेट्रा। तो इतना ऑप्शंस इनफ है, इतना याद रखने से हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आ गया गिवन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्वेंट इन विच कोवैलेंट कंपाउंड्स विल बी सॉल्युबल, इनमें से किसी एक का नाम लिख देंगे, या फिर सपोज MCQ है तो इन सब चीज़ों में से ढूंढेंगे कौन सा है ऑप्शन में, उसी को बोलेंगे। या फिर बोल दिया जाएगा कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्वेंट इन विच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, एग्जांपल है धर क्लोरोफॉर्म আছে, केरोसिन আছে, টার্পেন্টাইন অয়েল আছে, ওয়াটার আছে, কোনটা দেবো? ওয়াটার, ইনসলিউবল ইন ওয়াটার। বোঝা গেল? তো সলিউবিলিটি একটা পয়েন্ট।
নেক্সট বয়েলিং এন্ড মেল্টিং পয়েন্ট আমি আগেই বললাম এদের অনেক কম হয়। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सपोज एक कोवैलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया गया एंड उसमें से हम लोग चेक करना चाह रहे वो करंट कंडक्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। आंसर विल बी नो, करंट नहीं कंडक्ट कर पाएगा बिकॉज दीज कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस। आयंस होने से करंट कंडक्ट कर पाता है, इनमें आयंस होता नहीं है, दैट इज वाई दे आर इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिंग करंट। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। এগুলোতে সলিউবল, সলিউবল ইন নন পোলার সলভেন্ট বা অর্গানিক সলভেন্ট বললাম না, এগুলো নন পোলার বা অর্গানিকের এক্সাম্পল। আর ইনসলিউবল কোনটাতে, যেটাতে সলিউবল হবে না সেটাকে বলছি ইনসলিউবল। ওয়াটার। আচ্ছা হ্যাঁ, এটাও একটা পয়েন্ট, ওয়াটারকে কি টাইপের সলভেন্ট তাহলে বলবো? ওরা যদি নন পোলার হয় এটা কি হবে বলতো? ননটাকে হাঁটাতে পোলার, তাহলে ব্র্যাকেটে লিখে রেখে দে ওয়াটারের উপর দিয়ে বা পাশ দিয়ে কোথাও দিয়ে। কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস আর সলিউবল ইন ইনসলিউবল ইন ওয়াটার লিখলাম না আগের লাইনটা, ওই ওয়াটারের ওপর দিয়ে লিখে রাখ পোলার সলভেন্ট। পোলার, POLAR, পোলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দে, মানে ওয়াটার ইজ আ পোলার সলভেন্ট, এটা বোঝাতে চাচ্ছি। ক্লিয়ার হলো? পোলার মানে কি এটা এখন বুঝবি না, তা আপাতত মনেই রাখ যে পোলার সলভেন্ট মানে এটা, নন পোলার মানে ওরা। মানেটা আর একটু উঁচু ক্লাসে উঠতে হবে বুঝতে গেলে। আচ্ছা নেক্সট ইজ বন্ড টাইপ। কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডসে কোন বন্ড থাকবে? কোভ্যালেন্ট বন্ডই থাকবে। অ্যান্ড হাউ ইজ আ কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্মড? বাই শেয়ারিং অফ ইলেকট্রনস। দেখলাম আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল। শেয়ারিং occurs between which type of elements? Between two non-metals. Always remember this. বাস এই কয়টাই প্রপার্টি আমাদের মনে রাখতে হবে, দ্যাট উইল বি ইনাফ। বয়েলিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট আমি বললাম, বলেছি তো বেশ, এদের লো হয়, এটা লেখা নাই এখানে, না আছে আছে, ঠিক আছে, লো হয় এটা মনে রাখতে হবে। আয়নিকেরও প্রপার্টিস পড়বো আমরা, সেটাকে নেক্সট দিন আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেবো ফটো তুলে, এটা একটু নোট করে নিবি খাতার মধ্যে। আয়নিকটাও লিখে নিয়ে আসিস, নেক্সট দিন আমরা ওটা ডিসকাসও করবো। আচ্ছা এটা গেল কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। নেক্সট আয়নিক কম্পাউন্ডটা নেক্সট দিনের জন্যই রাখছি, কিন্তু কিছু আরও জিনিস আছে যেরকম মলিকুলার ওয়েট या মলিকুলার মাস। তা হেডিং দে মলিকুলার ওয়েট স্ল্যাশ মলিকুলার মাস। আজকে কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডেরই মলিকুলার মাস বার করবো, নেক্সট দিন আয়নিক কম্পাউন্ডও দেখা যাবে। হেডিং দে মলিকুলার মাস স্ল্যাশ মলিকুলার ওয়েট, দুটোই একই জিনিস, আলাদা নাম। জাস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করে আমি প্রসেসটা শেখাচ্ছি, এটা কি জিনিস সেটা আমি বলছি না। स्टार्ट करी चलो O2 दे, O2 हेडिंग दे दे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O2। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे, मॉलिक्यूलर मास का सिंबल होता है कैपिटल M, तो नीचे लिख कैपिटल M इक्वल्स टू, देख मॉलिक्यूलर मास বার করার জন্য কি করবি, এই দেখ O2 এই যে নাম্বারটা আছে যে 2, এই 2টা লিখে ফেলা প্রথমে। নেক্সট আমরা এই 2 কে মাল্টিপ্লাই করব উইথ দ্য মাস নাম্বার অফ দিস এলিমেন্ট। তো অক্সিজেনের মাস নাম্বার কত? 8 ইজ দি অ্যাটমিক নাম্বার। উপরে কোনটা লিখি? 16, 8 ও 16 যেটা লিখি সেই 16 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তাহলে 2 ইনটু 16, তাহলে কত আসলো? 32। সো 32 ইজ দি মলিকুলার মাস অফ অক্সিজেন। বোঝা গেল টেকনিকটা? প্রথমে নাম্বার, দেন উইল মাল্টিপ্লাই ইট উইথ দ্য মাস নাম্বার অফ দ্যাট পার্টিকুলার এলিমেন্ট। নেক্সট N2 আমাকে বার করে দেখাতো, নাইট্রোজেন মলিকিউল N2। নাইট্রোজেনের সিম্বলটা বলতো, কে পারবে? 7N, মাথার উপরে কি থাকে? 14, তাহলে মাস নাম্বার অফ নাইট্রোজেন ইজ 14। এগুলো আস্তে আস্তে মুখস্থ করতে হবে। তাহলে কত আসলো? 2 ইন্টু 2, 3 করতে পারছিস তুই? 28 এক্স্যাক্টলি, তাই না? নেক্সট লাস্ট একটা বার করে দেখা, H2 ডাইহাইড্রোজেন। এবার মাস নাম্বার অফ হাইড্রোজেন ইজ 1, 1H1 ফর্মুলা সিম্বল ছিল, তাহলে 2 इंटू 1 कत आसबे? 2 ही आसबे। नाउ सी, इसका नाम में मास है, लेकिन हम लोग कहीं पे मास का यूनिट जो ग्राम किलोग्राम जो भी है नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इटसेल्फ इज यूनिटलेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसका खुद का कुछ यूनिट नहीं, लेकिन फिर भी अगर यूनिट लिखना ही है, इसका एक यूनिट होता है AMU, तो लिखे देवे ওখানে প্রত্যেকটার পাশে AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, जस्ट মনে রাখবি AMU, बस लिखे दे AMU, स्मॉल a स्मॉल m स्मॉल u।
অথবা এএমইউর জায়গায় আরেকটা ইউনিটও লেখা যায়, শুধু ইউ লেখা থাকে অনেক সময়, মানে 32 যেটা আসলো আমাদের অক্সিজেন का मॉलिक्यूलर मास, उसको लिख सकते हैं 32 एएमयू और 32 यू, लिखे रख पाशे और दिए 32 यू। बुझा गया कथाटा? नाउ ये सब जो हमने मॉलिक्यूल्स किया इसमें एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो थोड़ा इसका भी कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलो H2O, এত কথা বলিস কেন? চেয়ারটা তুলে মাথার মধ্যে ভাঙিয়ে দেবো এবার, বাজার বাজার করবি না, কথাটা বোঝ আর মাথায় ঢোকা ওগুলা। H2O, H2O তে देयर आर 2 एलिमेंट्स ना, तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग से डील करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज देयर इन द फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन। तो एक ही लॉजिक, কয়টা আছে? দুটো, তাহলে 2 ইনটু এই ওইভাবে ও দিয়ে কি লিখছি, ফর্মুলা কি লেখালাম মলিকুলার মাসের m, লেখ m ইকুয়ালস টু 2 ইনটু 1 হলো। এবার এই 2 ইনটু 1টা তো হাইড্রোজেনের জন্য হলো, নেক্সট লোকের কাছে যাওয়ার সময় এটাকে ব্র্যাকেটে রেখে দে, তাহলে 2 ইনটু 1টাকে ব্র্যাকেটে এনক্লোজ করে দে, 2 ইনটু 1টাকে ব্র্যাকেটে এনক্লোজ করতে বলছি। কাট নিচের লাইনটা, তুই কাট এটা পুরা, আগে লাইনটাও কাট, কাট, ওখানে নোংরা করছিস তুই, পুরাই কাট। ওই H2 আবার হেডিং দে প্রপারলি, নষ্ট করে রেখে দিছে। চলো নিচে m ইকুয়ালস টু ব্র্যাকেট ওপেন কর, ভেতরে লেখ 2 ইনটু 1 হয়েছে ফার্স্টেরটা। নেক্সট এবার সেকেন্ড এলিমেন্টে যখন যাচ্ছি তখন কি করব? অ্যাড করব। তো মনে রাখতে হবে যখনই if the formula contains more than one kind of element, तो पहले तो फर्स्ट एलिमेंट देख लिए कितना है, 2 है, एंड विल मल्टीप्लाई इट विद द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल एंड ऑक्सीजन का भी सिंबल याद रखना है। तो हाइड्रोजन का मास नंबर कौन सा है? ऊपर वाला 1, तो 2 इंटू 1 हो गया मेरा पहला। नेक्स्ट एलिमेंट में जब जा रहे हैं ऐड करेंगे, इसको सम करेंगे, तो प्लस साइन बसा। नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट করার আগে ব্র্যাকেট ওপেন করে দেই। নেক্সট এলিমেন্টটা কি আছে? অক্সিজেন। কটা আছে? কয়টা আছে ফর্মুলাতে আমি বলছি? একটাই, কিছু লেখা নাই মানে 1, বুঝলেন? দ্যাট মিন ওই নাম্বারটাকে ফার্স্টে অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই কত দিয়ে করব? 16 দিয়ে। সো 2 into 1 2 and 16 into 1 16, so we get 18 U. So this is the molecular mass of water. Next ammonia, ammoniaর ফর্মুলা কে বলতে পারবে? एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये सब फॉर्मूलाज अभी से याद रखना है। तो नेक्स्ट विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया। पहले कौन सा एलिमेंट আছে? কোনটা আছে? नाइट्रोजन। কয়টা আছে? तो 1 मल्टीप्लाइड बाई की नाइट्रोजन मास नंबर कितना होता है? मास नंबर 14, এখন ही করলাম। हो गया पहला एलिमेंट का झमेला कंप्लीट। अभी नेक्स्ट एलिमेंट में जाने से पहले क्या करेंगे? ऐड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है? 3, एंड विल मल्टीप्लाई इट विथ मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज अगेन 1, तो 1 into 14 14, 3 to 1 3, तो आंसर विल बी 17 U। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 कार्बन का अगर सिंबल याद करें तो 6C12, और ऑक्सीजन तो पहले ही किए कर चुके हम लोग एक बार। कत হবে? শ্রুতি বল দেখি। প্রথমে 1 ইনটু, তারপরে কি করব? প্লাস, बस। তাহলে 12 प्लस 16 इंटू 2 কত হবে? 32, ऐड करने से 44। लास्ट H2SO4 এটা হয়ে গেল। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। চল এটা নিজেরাই কর।
ओ सल्फर अटके गেছিস सल्फर का फॉर्मूला होता है 16s32 ও হ্যাঁ না একটু সময় আছি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে চলো কত আসলো 98 হ্যাঁ 98 ইউ আচ্ছা আচ্ছা রাইট 98 ইউ বোঝা গেল কিভাবে তাহলে মলিকুলার মাস বার করে এটা কিন্তু বার করতে দেবে আচ্ছা এবার মনে করে দেখ আমি এর আগে আইসিএসসি দের সাথে একসাথে একটা জিনিস করিয়েছিলাম মলিকুলার মানে এই সরি কম্পাউন্ডের ফর্মুলা বার করা ওই যে ক্রিস ক্রস করে ঠিক খাতাটা পাল্টা থেকে শুরুর দিকে থাকবে মোটামুটি ওই জায়গাটা বার কর একবার দেখ একটা ক্রসের মতো থাকবে ডায়াগ্রাম করা খাতায় তো আর পেজ নাম্বার হয় না দাদা খাতা থেকে বার করতে বলছে বই থেকে না পেজ নাম্বার বইয়ের তো পরে বলবো আগে ওই জায়গাটা বার কর হ্যাঁ দেখি 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 দাঁড়া 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 দেখি ডান দিকে যা আরেক পেজ বাস এটা কি লেখা আছে এই তো পাওয়া গেছে তোকে আলাদা করে কি মানে চিঠি পাঠাতে হবে নাকি আরে সবাই বার করছে না বসে ল্যাথ খাচ্ছে ওর কাছে দিয়ে হবে না তো তোমার পড়াটা তোমারই খাতা নিস কেন আলাদা ওই লিখবে তাহলে তুই বসে শো দেখবি তুই ছিলিস না বোধহয় তখন আচ্ছা এটা খাতায় বেরোলো এরপরে বইয়ে বার কর বইয়ে বার করবি পেজ নাম্বার 174 পেজ নাম্বার 174 এন্ড 175 যদি দেখিস দুটো টেবিল আছে পাল্টা একটা ডান দিকে বাস এই দুটো টেবিল পুরো মুখস্থ করতে হবে কি আছে টেবিলটা এই বই দিকে দেখ ফার্স্টের কলামটা আছে নেম অফ দি আয়ন নেক্সট সেগুলো ফর্মুলা বলতে তার চার্জগুলোকে মনে রাখতে হবে কেয়ারফুলি নাও এন এর কি চার্জ আছে দেখ ভালো করে Na প্লাস আর ম্যাগনেসিয়াম খোঁজ তো ম্যাগনেসিয়াম খোঁজ দেখি কেন এটার প্লাস আর ওটার 2 প্লাস হ্যাঁ হ্যাঁ কেন ভ্যালেন্সি 2 একটু আগেই করালাম মাথা একটু জোর দে কি বোঝালাম সোডিয়ামের যদি কনফিগারেশনটা দেখি কয়টা ইলেকট্রন লুজ করবে সোডিয়ামের কনফিগারেশনটা বল দেখি ফটাফট सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबरটা বল কি পড়াশোনা করছিস তাহলে বাড়িতে এই সোডিয়ামের মতো কমন এলিমেন্ট যদি মনে না থাকে এগুলো মনে রাখতে হবে তো এগুলো কেউ তোকে করে দিয়ে যাবে না নরমাল পড়ার সাথে প্যারালালি এগুলাকে মুখস্থ করাও শুরু করতে হবে অ্যাটমিক নাম্বার অফ সোডিয়াম ইজ 11 কনফিগারেশন কি হবে
সো ও কি খুশি হবে K2L8M1 কনফিগারেশন নিয়ে? কি হলে খুশি হতো? তাহলে কি করবে সেই K2L8 বানাতে? এবং একটাই ছাড়বে। তাই একটা যখন ছেড়ে দেয় একটা অ্যাটম, ইলেকট্রন যখন লুজ করে তখন চার্জ কি আসে তার উপরে? পজিটিভ চার্জ। ইলেকট্রন ইটসেলফ ইজ নেগেটিভ, তো নেগেটিভ চার্জকে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে অ্যাটমটা কি হয়ে যাবে? পজিটিভলি চার্জড হয়ে যাবে। আর এটা আমি নেক্সট দিন আবার বোঝাবো যদিও, তাও এখন বলে দিই বেসিকটা। আর উল্টোটা যদি হয়, সাপোজ একটা অ্যাটম ইলেকট্রন গেইন করছে, তাহলে চার্জ কি হবে? মাইনাস হবে স্বাভাবিক। এবং নাম্বার অফ ইলেকট্রনস যতগুলো লুজ করবে তত পজিটিভ চার্জ আসবে। তাই সোডিয়াম কয়টা লুজ করবে বললাম? একটাই, তাই চার্জ কত আসলো ওর উপরে? +1, তাই দেখ প্লাস লেখা। ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার ইজ 12, কনফিগারেশন কি হবে? K2L8M2, 12 বললাম না, 12টা ইলেকট্রন। তাহলে কয়টা লুজ করবে ম্যাগনেসিয়াম? তাই চার্জও কত আসবে? 2+। ম্যাগনেসিয়ামে অলওয়েজ 2+ই পাবো, কোনোদিনও +1 পাবো না। বোঝা গেল কেন এখানে চার্জগুলো তাহলে এরকম দেওয়া? তো এখানে এই এক্সাম্পলগুলো দেখবি উইথ পার্টিকুলার ফোকাস অন আয়রন অ্যান্ড কপার। আয়রনের ক্ষেত্রে দেখ দুটো ফর্ম আছে, ফেরাস অ্যান্ড ফেরিক। ফেরাসের চার্জ কত? +2। ফেরিকের চার্জ কত? +3। কপারের ক্ষেত্রেও কিউপ্রাস কিউপ্রিক। কিউপ্রাসের চার্জ কত দেখ? +1, অ্যান্ড কিউপ্রিকের চার্জ কত? +2। এবং যত চার্জ দেখ ওটাই ভ্যালেন্সি। তাই যদি চার্জটাকে তুই কষ্ট করে মুখস্থ করিস, ভ্যালেন্সি আলাদা করে তোর মনে রাখার প্রয়োজন নেই, সেটাকেই ভ্যালেন্সি বলে চালিয়ে দেবো। ফেরাসের তাহলে ভ্যালেন্সি কত হবে? 2। চার্জ যদি বলি 2+, তাহলে ভ্যালেন্সি হয়ে গেল কত? 2। যদি ফেরিক বলি তাহলে চার্জ কত ছিল? 3+, তাহলে ভ্যালেন্সি কত হবে? 3। কিউপ্রাসের কত ভ্যালেন্সি হবে তাহলে? 1, কেন +1 চার্জ ছিল, তাহলে ভ্যালেন্সি খালি বলবো 1। বোঝা গেল কথাটা? আর অ্যানায়ন কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, হাইড্রোক্সাইড, নাইট্রেট, হাইড্রোজেন কার্বনেট, কার্বনেট, সালফেট, অ্যামোনিয়াম। এগুলা তো মনে রাখতেই হবে। তাছাড়াও খাতা খুলে দেখ, আমি অনেকগুলো লিখে দিয়েছিলাম, যেখানে এগুলো ছাড়া যে কয়টা এক্সট্রা ওখান থেকে পাচ্ছিস অ্যানায়নদের মধ্যে, সেগুলাকে ওখানে মনে রাখতো। ওইটাই রে বাবা, এত বড় তো টেবিল আঁকায় রাখছিস, তাও পাল্টাচ্ছে। ডান দিকেরটা দেখ, ডান দিকের টেবিলটা, এখানে দেখ অ্যানায়নগুলো আছে বোধহয় সব, দেখা যাচ্ছে? তাহলে এগুলোর ফর্মুলাগুলো মনে মুখস্থ করে কালকে আসতে হবে। বোঝা গেল? করে লাভ নাই, পরীক্ষাটা 3 দিন পরে দিবা। আমাকে যদি একটা সপ্তাহ আগে যখন ধরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষা কবে বলতে পারলি না, তাহলে এটা আস্তে আস্তে আমরা এতদিনে হজম করে নিতে পারতাম। কিছু করার নাই, সময়ের অভাব, এবং ওদের সাথে সাথে তোমরাও করে ফেলাবা একবারে। তো কালকে আমার এই টেবিলটা পুরো মুখস্থ চাই। প্লাস কালকে টেস্ট ছিল, সেই টেস্টের পড়াটা আশা করি হয়ে গেছে। কালকে আমি ওরালি জিজ্ঞেস করব সবাইকে, যারা যারা পারবে না কান ধরে আধা ঘন্টা করে মিডল হলে দাঁড়ায় থাকতে হবে। তো যদি বাচ্চাদের সামনে অপমানিত না হতে হয় তাহলে পড়াশোনাটা করে আসো। থার্ড, আজকে যেটুকু পড়ালাম এটাকেও পড়ে আসবি। তো কালকে আসবি তো ফার্স্ট আমি আজকের থেকে করতে দেব, প্লাস এগুলা চার্জ ফার্জও লিখতে দিব, এবং তারপরে আমি নতুন জিনিস স্টার্ট করে এই চ্যাপ্টারটাকে ফিনিশ করবো কালকে। বোঝা গেল কথাটা? समझ में आया? एंड जो लोग आया नहीं आज, बातें होगा तो उनसे बता देना, দেখা হলে যারা যারা আসেনি, ঠিক আছে? এই টেবিলগুলো পুরা বইয়ে যেটা আছে সেটাও, যেটা ওখানে দেখ বইয়ে যেগুলো আছে ওখানে সবই আছে, ওখানে দেখবি 2-1টা এক্সট্রা আছে, তো সেই এক্সট্রাগুলো লাগবে। যেরকম क्लोराइड যদি বলি, क्लोराइडটা बइए দেয়নি बिकॉज इट इज सो मतलब कॉमन, बुक में अलग से दिया नहीं गया। तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड मैंने एक साथ लिखा दिया, देखो Br माइनस, F माइनस, Cl माइनस, तो वहां से याद रखना इस चीज को। এই বোঝা গেল কথাটা? মাথায় ঢুকছে? বুঝছিস? আর আজকে যা যা হইলো ওগুলা মাথায় ঢুকছে সব? কারো কোনো সমস্যা? যেটুকু করলাম কোভ্যালেন্ট বন্ডিং, মলিকুলার ফর্ম, মলিকুলার মাস এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে? তাহলে এইটুকু ভালো করে পড়ে কালকে আসো, যাও।